Welcome to the year 2150. Flying cars zoom between skyscrapers. Robots help with daily chores. Holographic ads shimmer in the air. Meet Aru, a curious child in this world of logic, efficiency, and technological marvels. Digital forests replace real trees. Food comes from nutrient-packed capsules. Even playtime is high-tech with holographic games. Life in the future invites you into Aru's world, exploring technology's impact. With a wise robot, a talking bird, and a brilliant scientist, Aru's journey explores friendship and hope. It asks, what might we lose if we're not careful? Join Aru's mission to balance progress with nature and inspire a new generation of guardians. Our story begins with Aru, a child full of wonder. Aru's world is the dazzling city of 2150, where everything seems perfect. Yet Aru feels that something is missing. Aru looks around with questioning eyes, wondering about the filtered air and programmed bird songs. This feeling plants a tiny seed of curiosity in Aru's heart. It is the tale of humanity versus technology, from a child's perspective. Aru's questions challenge the very foundation of their futuristic society. These scenes introduce the audience to this futuristic setting through Aru's interactions. This highlights the irreplaceable value of real natural experiences in our lives. Aru's journey starts with a quiet yearning for something more authentic. The curtain rises on a truly breathtaking scene, the heart of the city in the year 2150. Everything is bathed in a soft ambient glow from sources unseen. Sleek pod-like vehicles glide silently along transparent sky bridges that connect magnificent crystalline towers. These buildings are alive with light and information, their surfaces displaying ever-changing patterns and updates. Around Aru, who stands center stage looking small and inquisitive, helpful robots of all shapes and sizes move with purpose. Some are cleaning bots, humming quietly, others are delivery bots, zipping past with packages. This is a world of perfect order and seamless technology. It is a beautiful city, but its beauty is polished, manufactured, and meticulously controlled, lacking the chaotic charm of the natural world. In this hypermodern landscape, nature exists only as a simulation. Instead of parks with grass, there are interactive holographic gardens where children can chase shimmering digital butterflies. The walls of the city's main plaza are massive screens, displaying a looped video of a dense, vibrant jungle. The image is stunningly realistic, with dewdrops on leaves and colorful parrots flying across the screen. Speakers hidden throughout the area play a symphony of jungle sounds, the calls of exotic animals, the rustle of leaves in a non-existent wind. Yet, for all its technical perfection, it is a silent, sterile forest. There is no smell of damp earth, no feel of humidity in the air, no chance of a sudden rain shower. It is a beautiful picture, a perfect imitation, but it is a picture nonetheless. We see Aru walking through this digital paradise, a look of fascination mixed with a subtle hint of confusion. The child watches other children laugh as they play with holographic pets, a fluffy kitten that you can see through, a playful puppy that leaves no paw prints. Everything is clean, safe, and predictable. There are no scraped knees from falling off a real tree, no muddy shoes from jumping in puddles, because there are no real trees or puddles to be found. The city has eliminated the messiness of life, but in doing so, it has also eliminated some of its most profound experiences. The world Aru inhabits is a testament to human ingenuity. People have solved the problems of pollution, hunger, and inefficiency. Food is delivered in nutrient-rich capsules that can be programmed to taste like any dish. Knowledge is downloaded directly, and entertainment is immersive and endless. However, the visuals will subtly hint at the cost of this progress. The lighting will have a cool, almost clinical feel. The movements of the robots will be rigid and repetitive. This environment serves as the perfect backdrop for Aru's journey, a gilded cage from which the human spirit yearns to break free. This conversation is the catalyst that sparks Aru's quest, setting the child on a path to discover the truth about the past and fight for a different kind of future. The real bird experience can be simulated in Hologram Room 7, Aru. We can select from over 10,000 avian species. The simulation is highly rated for its realism and educational value. Shall I book a session for you? But I want to feel the rain, not the scheduled light mist in the weather dome. I mean real surprising rain that smells like the sky. I read about it in an old story. And what about birds?
The sounds from the speakers are nice, but where are the real birds that make their own nests and sing their own songs? The Digital Arboretum is an optimized nature experience, Aru. It displays over 5,000 species of trees from Earth's classical green period. It is superior to a biological park because it requires no water, produces no pollen allergens, and is not susceptible to disease or seasonal decay. It is perfect and permanent. Nanny, why are the trees not real? Why can't I touch them and feel the rough bark? This is just cold glass. Aru, your schedule indicates it is time for your nutritional intake. Capsule 4B, flavored as chocolate pizza, is ready. आरू कैप्सूल को कुतरती है और फ्यूचर की परफेक्शन को एक्सपीरियंस की कीमत पर समझती है। यहाँ तक कि लैंग्वेज भी चेंज हो गई है। मिट्टी, पोखर, कीड़े और मधुमक्खी जैसे वर्ड्स हिस्टोरिकल डेटाबेस में हो सकते हैं, लेकिन वे अब डेली लाइफ का पार्ट नहीं है। यह दिखाता है कि लोगों के सोचने और दुनिया के बारे में फील करने का तरीका भी बदल गया है। आरू का क्वेस्ट इन खोए हुए वर्ड्स और फीलिंग्स को सोसाइटी के हार्ट में फिर से प्लांट करना है। आरू कैप्सूल को देखती है और धीरे से पूछती है, नन्ही, एक रियल एप्पल का टेस्ट कैसा होता था? शहर में लाइफ बहुत इजी, सेफ और कंफर्टेबल है, लेकिन कभी-कभी ऐसा लगता है कि इसमें एक खास टेक्सचर की कमी है। क्या मैं अकेली हूँ जिसे लगता है कि कुछ इम्पोर्टेंट चला गया है? रियल और फेक के बीच का डिफरेंस तब और क्लियर हो जाता है जब आरू नन्ही से एक फूड कैप्सूल लेती है, लेकिन उसे खाने से पहले हिचकिचाती है। इस पल में दादी की रिमेम्बरें आरू के भविष्य के लिए आशा के बीज बन जाती हैं। रिमेम्बरें पुल हैं, आरू। कहानियों के जरिए हम अतीत को जीवित रखते हैं। आरू सुनती है, उसकी आंखें चौड़ी हैं। एक ऐसी दुनिया की लालसा है जहां हरा रंग स्क्रीन पर एक रंग से रिमेम्बरा था। ताजे अमरूद का स्वाद, खुरदुरी छाल, मेरे हाथ पर तितली के उतरने की हैप्पी, ये ऐसे खजाने हैं जो कोई मशीन नहीं दे सकती। उनकी कहानियां रंग और भावना से भरी दुनिया को दर्शाती हैं। आरू जिस डिजिटल दुनिया को जानती है उससे बहुत अलग। मेरे बचपन में हम खेतों में खेलते थे, आम के पेड़ों पर चढ़ते थे और बारिश में हंसते थे। शहर की चमक फीकी पड़ जाती है, जिससे आरू के घर का एक शांत, धूप वाला कोना दिखाई देता है। दादी एक पुराने झूले पर बैठी हैं, अपने हरे भरे गांव की एक धुंधली तस्वीर पकड़े हुए। आरू को एक चमक महसूस होती है, चेंज्ड व संभव है। भविष्य तय नहीं है आरू, ये उन लोगों का है जो सवाल पूछते हैं और नए जवाब ढूंढते हैं। दादी की आवाज में उम्मीद चमकती है, आरू को ज्ञान देती हुई। कुछ भी सच में खोया नहीं है, अगर हम याद रखें और कोशिश करें। धरती हमारा इंतजार कर रही है कि हम फिर से उसकी परवाह करें। आरू का दिमाग दौड़ता है, क्या इसे वापस लाने में बहुत देर हो चुकी है? चेंज्ड वर्ल्ड धीरे धीरे आया। हमने आराम के लिए शहर बनाए, लेकिन गीली मिट्टी की हैप्पी बू और असली पक्षियों के गीत जैसे साधारण सुख खो दिए। आरू दादी की कहानियों से प्रभावित होकर पूछती है, चीजें क्यों बदलनी पड़ी? हम असली खेतों में क्यों नहीं खेल सकते? दादी की रिमेम्बरें आरू की यात्रा की नींव बन जाती हैं। भविष्य याद रखने और परवाह करने से बनता है, सिर्फ नए आविष्कारों से नहीं। आरू बीजों को कसकर पकड़ लेती है, उसे आगे आने वाले काम का भार और अजूबा महसूस होता है। परवाह करो, सवाल पूछो, देखो क्या गायब है, दूसरों को सिखाओ। छोटे से शुरू करो, जैसे एक बीज लगाना। इन बीजों को धूप, पानी और प्यार चाहिए। शायद साथ मिलकर तुम उन्हें बड़ा होने में मदद कर सको। मैं क्या कर सकती हूँ दादी? अगर हम फिर से असली पेड़ और पंछी चाहते हैं, तो हमें अतीत से सीखना होगा और अलग तरह से काम करना होगा। दादी की बातें आरू के दिल में बैठ जाती हैं। वो नुकसान की कहानियां नहीं, बल्कि कुछ करने की पुकार होती हैं। अचानक एक रियल मेलोडिक चहचहाहट से कालमी भंग होती है। भूरे और पीले रंग की एक धारी बालकनी पर फड़फड़ाती है। ये चीकू है, एक खुरदुरा जिंदा पक्षी, इतना रेयर, ये एक चमत्कार जैसा लगता है। आरू और दादी माँ औ इसे देखते हैं। आरू के लिए ये इस बात का प्रूफ है कि दादी माँ की कहानियां सच हैं। चीकू की प्रेजेंस इस बात की जिंदा रिमाइंडर है कि क्या दांव पर लगा है मशीनों की दुनिया में एक सर्वाइवर। पक्षी के रफल्ड पंख और कॉशियस आंखें स्ट्रगल और उम्मीद की कहानी कहती हैं। आरू धीरे से पास आती है, दिल तेजी से धड़क रहा है। यह कोई होलोग्राम नहीं है, यह जिंदगी है। चीकू एक और प्राचीन गहरा चहचहाता है। उसी पल आरू और अकेला पक्षी के बीच एक कनेक्शन बनता है। चीकू का आना एक भूली हुई दुनिया से एक कॉल है और आरू सुनने के लिए तैयार है। आरू सिर हिलाती है, दिल रिजॉल्व से भरा हुआ है। क्या तुम हेल्प करोगी छोटी ह्यूमन? सिटी की परफेक्शन अब ठंडी लगती है। आरू आखिरकार समझ जाती है कि सच में क्या दांव पर लगा है। छोटे एक्शन भी बड़े चेंजेस ला सकते हैं आरू।
चीकू की रिक्वेस्ट एक चैलेंज है और उम्मीद का मैसेज भी। नेचर का फ्यूचर अब अरु के पास है। ये सिर्फ बर्ड्स नहीं है, मधुमक्खियां चली गई हैं, इसलिए फूल नहीं खिलते। कीड़े चले गए हैं, इसलिए मिट्टी कमजोर है। सब कुछ कनेक्टेड है, लेकिन उम्मीद है। अगर आप अर्थ की केयर करते हैं तो शायद मेरे दोस्त वापस आ जाएंगे। शायद हम फिर से रियल सॉन्ग्स गा पाएंगे। चीकू के वर्ड्स रियल लाइफ और नकल के बीच का डिफरेंस बताते हैं। अरु फुसफुसाती है, हमने क्या किया? चेक, नमस्ते, डरो मत, मैं चीकू हूँ। मैं एक सेफ जगह और दोस्तों की तलाश में हूँ। मैं अपनी तरह का आखिरी हूँ। मेरा परिवार चला गया है, उनकी जगह रोबोट बर्ड्स ने ले ली है जो सिर्फ शोर करते हैं, म्यूजिक नहीं। चीकू अपनी चोंच खोलता है और अरु को हैरान करते हुए बोलता है, यह खोज अब सिर्फ पेड़ों के बारे में नहीं है, यह एक वादा निभाने और धरती की आत्मा को वापस लाने के बारे में है। जाओ अरु, दुनिया को तुम्हारी हिम्मत की जरूरत है। चीकू अरु को अगला कदम बताता है, उम्मीद का एक नक्शा देता है। एक आखिरी चहचहाहट के साथ चीकू उड़ जाता है और कमरे में एक मकसद छोड़ जाता है। अरु दादी की तरफ मुड़ती है, आंखें चमक रही हैं। मुझे प्रोफेसर ज्ञान को ढूंढना है, मैंने चीकू से वादा किया है। शुक्रिया, पर तुम्हें सिर्फ बीज नहीं चाहिए होंगे, तुम्हें ज्ञान भी चाहिए होगा। सबसे ऊंचे टावर पर प्रोफेसर ज्ञान मिलेंगे। उनके पास लाइफ सीड्स हैं जो कहीं भी उग सकते हैं। अरु चीकू से वादा करती है, मैं मदद करूंगी, हम धरती को फिर से हरा भरा बनाएंगे। अरु, तुम में दुनिया बदलने का हौसला है। चीकू की बात से अरु का दुख पक्के इरादे में बदल जाता है। Following Chiku's guidance, Aru's mission leads her to the city's tallest building, the Tower of Knowledge. Inside is a vertical university filled with labs, libraries, and observatories. Aru, with Nani, boards a transparent elevator pod. The city unfolds below like a giant circuit board. Aru feels a new determination to bring real color to its monochrome perfection. Nani explains each level's function like weather synthesis. Finally, the elevator reaches the top floor, the Biosciences and Restoration Lab. The doors open to a space unlike the rest of the tower. This laboratory is bathed in a warm golden glow. Strange glowing plants grow in nutrient-rich gel. It feels more like an alchemist's workshop. The air smells earthy, a scent of life being nurtured. This laboratory is an oasis of organic chaos. Aru looks around, feeling hope bloom. This is the right place. एक बड़ी टेबल से प्रोफेसर ज्ञान आते हैं। वो दयालु और चमकती आंखों वाले एक ओल्डर मैन हैं और उनके बाल बिखरे हुए हैं। हेलो देयर यंग एक्सप्लोरर, वेलकम टू माय हम्बल ग्रीन हाउस इन द स्काई। उनके हाथों पर असली मिट्टी लगी हुई है। वो आरू को अपनी लैब दिखाते हैं। आरू तुरंत ट्रस्ट फील करते हुए सब कुछ बताती है। यू हैव अ गुड हार्ट चाइल्ड, तुमने अर्थ की विस्पर को सुना है। होप कर रहा हूँ कि एक दिन एक जनरेशन आएगी जो इसे वापस पाने के लिए ब्रेव इनफ होगी। ऐसा लगता है कि वो दिन फाइनली आ गया है और वो तुम्हारे साथ आया है। उन्हें यह समझ नहीं आया कि लाइफ ही मेस है। वो एक होपफुल ग्लीम के साथ आरू की ओर देखते हैं। बट यू अंडरस्टैंड, और यही रीजन है कि मैं किसी ऐसे ही पर्सन का वेट कर रहा था जिसके साथ मैं अपनी ग्रेटेस्ट डिस्कवरी शेयर कर सकूं। प्रोफेसर ज्ञान धीरे से केस खोलते हैं और जीवन बीजों की कॉस्टी बोतल मुझे सौंप देते हैं। उसकी पकड़ मेरे हाथों में भारी लगती है। ये सिर्फ कांच और बीज नहीं है, ये भविष्य का भार है। चीकू से किया वादा है और दादी के साथ साझा किया गया सपना है। मैं बोतल से प्रोफेसर के चेहरे की ओर देखती हूँ जहाँ उम्मीद झलक रही है। फिर मैं पूरे जोश के साथ कहती हूँ, तो फिर किस बात का इंतजार? चलिए एक नई दुनिया बोते हैं, धरती को नया सवेरा देते हैं। यही वो पल है जब सब कुछ एक साथ आ जाता है। दादी की समझ, चीकू की पुकार और प्रोफेसर का विज्ञान। हल अब हमारे हाथ में है। अब ये मिशन शुरू होता है जिससे शहर फिर से हरा भरा होगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन इन बीजों को सिर्फ मेरे विज्ञान से नहीं बल्कि तुमसे भी बहुत कुछ चाहिए आरू। इन्हें बोने के लिए देखभाल करने वाले हाथ चाहिए, इन्हें बचाने के लिए बहादुर दिल चाहिए और इन पर विश्वास करने के लिए उम्मीद से भरा मन चाहिए। विज्ञान साधन दे सकता है पर मकसद सिर्फ इंसानियत दे सकती है। धरती को फिर से अपने बच्चों की जरूरत है जो उसके माली बन सके। मैं उस बोतल को देखती हूँ जिसमें ये चमकते बीज हैं और उसकी ताकत और उम्मीद से मंत्रमुग्ध हो जाती हूँ। मैं अपना हाथ बढ़ाती हूँ, लगभग कांच के केस को छूने ही वाली हूँ। फिर मैं धीरे से पूछती हूँ, तो इनसे हम सच में कर सकते हैं? हम दुनिया को वापस ला सकते हैं? ये मेरे जीवन भर के काम का नतीजा है। ये है जीवन बीज, लाइफ सीड। ये कोई साधारण बीज नहीं है,
ये विज्ञान और प्रकृति का चमत्कार हैं, जिन्हें ऐसी दुनिया में पनपने के लिए बनाया गया है जो अब जीवन के लिए कठिन हो चुकी है। ये जीवन बीज खास हैं। मैंने इनमें सबसे मजबूत प्राचीन पौधों की जेनेटिक मेमोरी डाली है। ये तेजी से उग सकते हैं, हमारे सिटियों की सख्त सिंथेटिक जमीन को तोड़ सकते हैं और जैसे जैसे बढ़ते हैं मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। इन्हें परफेक्ट हालात की जरूरत नहीं है, इन्हें बस एक मौका चाहिए। ये बीज अग्रदूत हैं, वो पहली हरी लहर जो हमारे सिटियों को फिर से हरियाली में बदल देगी। हर छोटे से बीज में एक पूरे जंगल की ताकत छुपी है। नानी बच्चों के बीच घूमता है, सीड्स को पानी देने के लिए एक जेंटल टच का उपयोग करता है। बच्चे नानी को एक फेलो गार्डनर मानते हैं। आरू द्वारा लगाया गया पहला सीड और ब्राइटर चमकता है। एक टाइनी वाइब्रेंट ग्रीन शूट हार्ड ग्राउंड से ऊपर उठता है। क्राउड में वंडर का एक कलेक्टिव गैस फैलता है। ये पहली रियल लिविंग प्लांट है जो सिटी ने 100 साल से भी रिमेम्बरा समय में देखी है। शांत चीयर्स एक जॉयफुल सेलिब्रेशन में बदल जाते हैं। यह इस बात का प्रूफ है कि लाइफ अनस्टॉपेबल है और यह कि हैंडफुल ऑफ डिटरमिन्ड बच्चे सब कुछ बदल सकते हैं। यह सिटी के स्टेरिल परफेक्शन के खिलाफ रिबेलियन का एक स्लो केयरफुल एक्ट है। एआरू की करेज से इंस्पायर्ड होकर सिटी के दूसरे बच्चे भी जमा हो गए हैं। जैसे ही पहली हरी कोपलें निकलती हैं, शहर बदलने लगता है। पहले ये धीमा होता है, लेकिन फिर वाह, ये जादू जैसा है। लाइफ सीड्स, जैसा कि प्रोफेसर ज्ञान ने वादा किया था, अविश्वसनीय ऊर्जा के साथ बढ़ते हैं। चमकीले फूलों वाली बेलें गगनचुंबी इमारतों की ठंडी धातु की दीवारों पर चढ़ जाती हैं। नरम हरी घास प्लाजा में फैल जाती है, कठोर जमीन को एक जीवित कंबल की तरह ढक लेती है। हवा, जो कभी फिल्टर और बासी थी, अब खिलते हुए फूलों और ताजी मिट्टी की मीठी सुगंध से भर जाती है। लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, रंगों और गंधों से आकर्षित होते हैं। उनके चेहरे विस्मय से भरे होते हैं। ऊपर आसमान में पंखों का फड़फड़ाना सबकी नजरें खींच लेता है। यह चीकू है, बहादुर छोटा पक्षी। सिवाय इस बार चीकू अकेला नहीं है। असली पक्षियों का एक छोटा झुंड पीछे पीछे आता है। उनके रंग आसमान के खिलाफ चमकीले दिख रहे हैं। वे बिल्कुल नए पेड़ों की शाखाओं पर उतरते हैं और अचानक शहर सच्चे पक्षी गीत से भर जाता है। एक जॉयफुल जीवित कोरस, चहक चहक। दोस्तों, घर ऐसा ही लगता है। बच्चे ऊपर देखते हैं, हैप्पी से झूमते हुए। आरू का चीकू से किया वादा सच हो गया है। पक्षियों की वापसी का मतलब है कि इकोसिस्टम ठीक हो रहा है। प्रकृति की वापसी सिर्फ पौधों और जानवरों से कहीं रिमेम्बरा है। यह जीवन के एक ऐसे तरीके की वापसी है जिसे शहर भूल गया था। बच्चे जो कभी घर के अंदर होलोग्राफ के साथ खेलते थे, अब असली घास पर दौड़ते और लाफिंगते हैं। वे फूलों की माला बनाते हैं, भृंगों को रेंगते हुए देखते हैं और अपने पैरों के नीचे धरती को महसूस करते हैं। उनके घुटने गंदे हो जाते हैं, उनके हाथ मिट्टी से सने होते हैं और उनके दिल हैप्पी से भर जाते हैं। बड़े भी इसमें शामिल होते हैं, नए बगीचों की देखभाल करते हैं। वे सिर्फ पेड़ नहीं उगा रहे हैं, वे प्रकृति के साथ और एक दूसरे के साथ कनेक्शन बढ़ा रहे हैं। एक बालकनी से दादी देखती हैं, उनके गाल पर हैप्पी का एक आंसू है। जब बच्चे सपने देखने की हिम्मत करते हैं तो दुनिया सुनती है। जब वे अपने हाथों से आशा का बीज लगाते हैं तो भविष्य खुद अपनी राह बदलता है। उन्होंने सिर्फ पेड़ और पक्षी वापस नहीं लाए, उन्होंने दुनिया का दिल वापस लाया। उनके शब्द इस नई शुरुआत के गहरे अर्थ को कैप्चर करते हैं। फाइनल सीन प्योर हैप्पी और उम्मीद की एक पिक्चर है। लाइफ हर जगह है, छोटे पेड़ उग गए हैं, फूल हर कलर में खिल रहे हैं और हवा बर्ड सॉन्ग और लाफिंगी से भरी है। आरू, दादी माँ, प्रोफेसर ज्ञान, नन्ही और सभी बच्चे एक साथ खड़े हैं, उस दुनिया को देखते हुए जिसे बनाने में उन्होंने हेल्प की है। चीकू आरू के कंधे पर हैप्पी से बैठा है, एक हैप्पी मिजाज धुन गा रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो गया है। 2150 का शहर अब आर्टिफिशियल परफेक्शन का स्मारक नहीं है, यह उम्मीद और टीम वर्क का एक जीता जागता सिंबल है। बच्चे ऑडियंस की तरफ मुड़ते हैं, उनके चेहरे ब्राइट और पर्पस से भरे हुए हैं। हम प्रॉमिस करते हैं, हम हमेशा याद रखेंगे, हम अपनी अर्थ की केयर करेंगे, हम इसे ग्रीन और लाइफ से भरपूर रखेंगे, अपने लिए और उन सभी बच्चों के लिए जो हमारे बाद आएंगे। उनकी प्लेज सिर्फ वर्ड्स से बढ़कर है। यह एक रियल प्रॉमिस है, एक जनरेशन की कमिटमेंट जिसने खालीपन और रिन्यूअल दोनों देखे हैं। जैसे ही वे खत्म करते हैं, एक जेंटल अपलिफ्टिंग मेलोडी शुरू होती है और हर कोई एक साथ गाता है, प्लांट ए ट्री, सेव ए लाइफ।
ये सॉन्ग सिंपल, जॉयफुल और याद रखने में आसान है। ये एंश्योर करते हुए कि ऑडियंस इंस्पायर्ड और डिफरेंस लाने के लिए रेडी फील करे। कास्ट एकजुट खड़ी है, एक रिन्यूएड वर्ल्ड के गार्डियन, एक डिजिटल स्टेराइल सिटी से एक वाइब्रेंट लिविंग सिटी तक की उनकी जर्नी पूरी हो गई है। उन्होंने पास्ट का सामना किया है, वाइज से सीखा है और एक बेटर फ्यूचर बनाने के लिए साइंस और काइंडनेस का यूज किया है। नया सवेरा आ गया है, सिर्फ शहर के लिए नहीं बल्कि हर किसी के लिए जो उम्मीद और चेंज में बिलीव करता है। लाइफ इन द फ्यूचर की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, यह एक नई उम्मीद के साथ शुरू होती है। ऑडियंस को एक पावरफुल मैसेज मिलता है, फ्यूचर सेट इन स्टोन नहीं है बल्कि एक गार्डन है जिसे हम सब मिलकर ग्रो करने में मदद करते हैं। आरू की जर्नी एक क्यूरियस बच्चे से ग्रीन रेवोल्यूशन के लीडर बनने तक यह दिखाती है कि चेंज एक ऐसे इंसान से शुरू होता है जो सवाल पूछने की परवाह करता है। ये कहानी टेक्नोलॉजी के वंडर्स को नेचर के इरिप्लेसेबल मैजिक के साथ बैलेंस करती है। ये दिखाती है कि सबसे अच्छा फ्यूचर वह है जहाँ साइंस लाइफ को रिप्लेस नहीं बल्कि उसकी मदद करती है। यह हमें सिखाती है कि छोटे से छोटे एक्शंस भी बहुत बड़े चेंजेस ला सकते हैं, खासकर जब हम मिलकर काम करते हैं। बच्चों का पृथ्वी को प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस ही इस कहानी का हार्ट है। हर यंग पर्सन के लिए हमारे प्लेनेट का गार्डियन बनने का एक कॉल। ग्रे सिटी को ग्रीन होते हुए देखकर ऑडियंस को यह पता चलता है कि एक बेहतर वर्ल्ड पॉसिबल है, सिर्फ एक ड्रीम नहीं। यह प्ले स्कैरी या प्रीची होने से बचती है, इसके बजाय ये होप से भरा एक एडवेंचर है। ग्रैंडमा की विजडम, चीक का चीयर, प्रोफेसर ज्ञान की ब्रिलियंस और नानी का नया पर्पस, यह सब दिखाते हैं कि विजडम, नेचर, साइंस और टेक्नोलॉजी अच्छे के लिए एक साथ काम कर सकते हैं। फाइनल सॉन्ग प्लांट अ ट्री सेव अ लाइफ आपके साथ रहने के लिए है। इसकी मेलोडी और मैसेज याद रखने में आसान है। यह सभी को इसमें शामिल होने और होप को आगे बढ़ाने के लिए इनवाइट करती है। यह सिर्फ एक सॉन्ग से बढ़कर है, यह एनवायरमेंटल केयरटेकर्स की एक नई जनरेशन का एंथम है। अल्टीमेटली लाइफ इन द फ्यूचर कनेक्शन के बारे में है, जनरेशंस के बीच, लोगों और नेचर के बीच और हमारे पास्ट और हमारे फ्यूचर के बीच। यह हमें याद दिलाता है कि प्रोग्रेस मैटर करता है, लेकिन हमें कभी भी अपनी सेंस ऑफ वंडर, लिविंग वर्ल्ड के लिए अपना प्यार और इसकी देखभाल करने की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं खोनी चाहिए। यह प्ले गहरी होप के एक नोट पर खत्म होती है, हर बच्चे को इस विश्वास के साथ छोड़ती है कि उनके अपने हाथों में कल के सीड्स हैं, उन्हें प्यार, करेज और सभी के लिए एक ब्यूटीफुल थ्राइविंग वर्ल्ड के प्रॉमिस के साथ बोने के लिए तैयार।